اب علاج اس کا نہیں ہو سکتا، روز بروز اس کی حالت بگڑ رہی ہے اور روزے کی وجہ سے اس کی حالت اور بگڑے گی، ایسے موذی مرض والا اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے۔ باقی زکام، بخار، بلڈ پریشر، شوگر، یہ وہ ان بیماریوں والا ہٹا کٹا امیر آدمی فدیہ دے گا، نہ اس کا فدیہ قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے، اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے اور اپنی دنیاوی طور پہ بھی اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اخروی طور پہ بھی زیادتی کر رہا ہے۔ ہڈ حرام ہے جو پورا سال کھلاتا ہے، ایک مہینہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ بھی صبح صادق سے لے کر دوستان گرامی غروب آفتاب تک، بس یہی تو کچھ ہے۔ اور جتنے لوگ روزہ رہا ہیں کیا وہ مر گئے ہیں بھوک کی وجہ سے؟ کیا بھوک کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا، بلکہ آقا پاک کا ارشاد ہے روزہ رکھو تمہیں صحت مل جائے گی، روزہ رکھو تمہیں صحت مل جائے گی۔ یہ تو پہلے میں نے اس حوالے سے بات کی۔ باقی فدیے کے مکمل مسائل آپ علماء کرام سے سنیے، یہاں پہ بات نہ وقت نہیں ہے کہ اتنی طویل بات کی جا سکے۔ دوسری جو بالکل صحیح سلامت ہیں اور جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، ان سے میری گزارش ہے، میرے آقا پاک کا یہ ارشاد سن لو، نوجوانوں جان بوجھ کر روزے قضا کرنے والوں میری بات سن لو، میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا ایک روزہ قضا کرنا اس کو 9 لاکھ سال دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا، 9 لاکھ سال دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ قضا کیا۔ ایسے کوئی آسان ہے خدا کا فرض چھوڑ دینا، خدا کا فرض چھوڑ دینا اور سارا دن کھاتے پیتے رہنا اور ماہ رمضان کی بے حرمتی کرنا؟ لہذا کسی صورت کے اندر بھی دوستان گرامی جو شرعی مجبوری ہے اس کے علاوہ مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ قضا کرے۔ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ قضا ہوتا ہے تو بعد میں روزے کی قضا رکھنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ آج ہم اتنے بے فکرے ہو گئے روزہ سے، نہ روزے کے مسائل کا پتہ ہے نہ رمضان کا چنتا ہے، ہمیں عیدوں کی فکر ہے، عیدوں کا جوڑا کیسا ہونا چاہیے، عیدوں کی جوتی خریدی ہے یا نہیں خریدی۔ نوجوان مرد عورت صرف فیشن میں، پورا رمضان فیشن کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کون کرے گا؟ تو کون پڑھے گا تراویح؟ کون پڑھے گا ماہ رمضان میں تلاوت کون کرے گا؟ اللہ رسول کو راضی کون کرے گا؟ ہر مہمان دے تو سائیری میرا توجہ خراب کریں دے رہا ہے نا، میرے کو تقریر نہیں تھی لی اٹو جو بندہ آمنا اتنے بات ہی ہونے تو تسا دیکھنا لازمی ہے، وہ اتھو چاہندے ہو تو اتھے توڑ پہ چاہندے ہو، اٹھے دیکھو اٹھے میں جو تقریر کرون تے لگا بیاں توڑے واسطے کریں دے بیاں تسا ہر پاسے اٹھے دیتے ہو تقریر کون سن سی سمجھے سی کون؟ آنکھو سبحان اللہ گا لگو تے کرا انہیں دماغ خراب نہ کیتا کرو نہ کوئی تقریر سنوں دی ڈا بھی ہوں دی اتھو جو مہمان آن دے اتھے توڑیاں نظرہ وینیاں انہیں پھریندہ اتھے جتنے دے پاندہ نہیں اتنے تے تسا ولا کے توجہ نہ کریں دے تقریر کہنو سنا ہوا ڈوڑے ٹپے تے ہننے جو میں کان تے ہاتھ رکھی بیٹھا ہوا تے جنہیں تسا دیتے رہو تے میں ہی وگدہ رہا یہ تو سمجھو سمجھاؤں دیا گلن تے اسلائی معاشرے تے انہیں لوگوں نے پھساونا ہو کھاؤں دے اس واسطے اور میں وقت وال ونجنا عشق رسول تے وقت والے جذبے تے جوش تے تسا وقت اٹھی کھلو سو اسلائی معاشرے تے گل کرنی اوکھی ہوندی ہے اس واسطے توجہ چاہیے ہوندی ہے ولو آکو سبحان اللہ کو نعرہ سنو میں وقت گل شروع کرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت۔ دوستوں میں عرض کر رہا تھا پہلی گزارش میں نے یہ کی ہے کہ ماہ رمضان میں ہٹے کٹے کھاتے پیتے لوگ ہم یہ فدیہ دے دیں گے، ایسے فدیہ نہیں ہوتے۔ میں نے فدیہ کی شرط بتا دی ہے، اگر بیماری کی وجہ سے روزہ قضا ہوا تو روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے، اور اگر خامخواہ روزہ قضا کرو گے 9 لاکھ سال میرے آقا پاک کا ارشاد ہے اس کو دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سوکھا ہے میرے بھائیوں، جہنم کی آگ میں جلنا بڑا اوکھا ہے۔ خدا کا فرض ہے اللہ پاک کی محبوبیت، اللہ پاک کی طرف سے مغفرت، خدا کی رضا، قبر و آخرت کی کامیابی اس کو ملے گی جو نبی پاک کی شریعت کا ادب اور احترام کرنے والا ہے۔ اس سے اور میں آگے کچھ عرض کرنے والا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا دوستو۔ اس بندے کا روزہ کیا روزہ ہے جو صبح روزہ رکھ کے گھر سے نکلتا ہے اور دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ والا مال بیچتا ہے، تو نبڑیاں کرتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ دی قسم میں روزے نال بیٹھا، اللہ دی قسم میں روزے نال بیٹھا، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے رمضان کا؟ ویسے بھی شریعت کے احترام میں نہ 2 نمبر مال بیچ سکتے ہو نہ ملاوٹ والا مال بیچ سکتے ہو۔ آقا پاک نے فرمایا ملاوٹ کرنے والے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آج کل زمیندار فصلیں اٹھا رہے ہیں، جب یہ بوریاں بھرتے ہیں نا گندم کی یا کٹو بھرتے ہیں اس کے اندر گندم بھی اندر، گند بھی اندر،
अंदर, भूसा भी अंदर, मट्टी भी अंदर, हर चीज मिला जुला के बाजारों में बेच देते हैं। अल्लामान अल-हफीज पता नहीं गंदम पहुंचते पहुंचते कितनी उसमें करप्शन होती है। फिर आगे जब बड़ी गाड़ियों पे लोड होती है, आगे जाती है, अब जो लोडिंग वाले होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर वाले, वो उसमें से 500-600 मन निकाल लेते हैं। फिर मैंने देखा है बड़े बड़े होटलों पे पाइप लगा के खड़े होते हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने इसमें से गंदम चोरी की है, अब पाइप लगा के वजन पूरा कर रहे हैं। पहले जमींदार ने उसके अंदर कचरा डाला, उसके अंदर वट्टे रोड़े डाले, उसके अंदर मट्टियां डाली, उसके अंदर भूसा डाला और 100 किलो की बोरी के अंदर 20 किलो 25 किलो गंद डाल के दिया। फिर आगे जाकर उन्होंने चोरियां की, फिर उसके ऊपर से पानी डाला। लोगों की हजारों टन गंदम बर्बाद हो जाए, इसके 500 मन बचने चाहिए। जगह जगह पे करप्शन हो रही है। फिर आगे जाकर कहां कहां करप्शन होती है। बहरहाल ये एक लंबी दास्तान है। तो दोस्तों रोजा रख के आया, दिन को डंडी मार रहा है, मिलावट वाला माल बेच रहा है, तो नंबरियां कर रहा है, कम नापतोल में कमी कर रहा है, झूठी कस्में उठा रहा है। ये माह रमजान की भी बेहुरमती है, शरीयत की भी बेहुरमती है, ये बगावत है शरीयत के साथ। लोगों याद रखो, सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, सिर्फ सजदे कर लेना काफी नहीं है, सिर्फ कुरान का नाम लेना काफी नहीं है। तब तक मुसलमान कामिल नहीं बनेंगे जब तक मुकम्मल शरीयत मुस्तफा पे अमल करने वाले ना हो जाएंगे। लिहाजा हमें अपने अंदर के नक्श ढूंढना होगा। हम कहते हैं वो सीधा हो जाए, वो सीधा हो जाए, फलां करप्शन कर रहा है, फलां रिश्वत ले रहा है, फलां तो नंबरियां कर रहा है, और भाई वो तो सीधा होगा, तुझे कौन सीधा करेगा, तुझे कौन सीधा करेगा, तू सीधे रास्ते पे कब आएगा, तू अपने मामला दुरुस्त कब करेगा। दोस्तों नमाज बड़ी अच्छी चीज है, मैं आखिर में नमाज पे बोलूंगा, आखिर में मैं इस हवाले से बात करूंगा। लेकिन नमाज और रोजा रखने के बावजूद हमारे अंदर जो अखलाकी बुराइयां हैं ये कब तक जारी रहेंगी। अच्छा मुसलमान कौन है जो झूठ नहीं बोलता, अच्छा मुसलमान कौन है जो किसी के साथ धोखा नहीं करता, अच्छा मुसलमान कौन है जो पड़ोसी को तकलीफ नहीं देता, अच्छा मुसलमान कौन है जो किसी के साथ बुग़्ज़ नहीं रखता, हसद नहीं रखता, किसी की नुकसान नहीं चाहता। आज जगह जगह पे दुश्मनियां हैं, जगह जगह पे अनानियत है। बहरहाल ये माह रमजान की मैं बात कर रहा हूँ, आए रमजान के हवाले से मैं एक और बात करने भी चला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि रोजे में रूह पैदा हो जाए, डंडी नहीं मारनी, 2 नंबरी नहीं करनी, 5 वाली 30 बढ़ाकर 10 की नहीं बेचनी, जखीरा अंदोलियां नहीं करनी, कौम को दगा और फरेब नहीं देना। अगर इसी तरह करते रहेंगे हमारे रोजों की रूह खींच ली जाएगी, हमारी इबादत का सुरूर नहीं आएगा, नूर नहीं आएगा। रोजे के हवाले से अगली बात कर रहा हूँ, जरा सुभान अल्लाह बोले, मैं अगली बात पेश करूं। दोस्तों अगली गुजारिश है, पहले लोग ऐसे होते थे कि रमजान का रोजा है, अब रोजा जनाबे वाला गुजारना है। जो बाजार वाले हैं, कारोबार वाले हैं, मुलाजमत वाले हैं, तालीम वाले, वो तो अपने कामों में लगे रहते हैं। जो वेला टाइम लगता था ना, तो लोग कोई ना कोई बहाना तलाश करते थे कि अब हम टाइम पास करें। वो एक वक्त था, वो गुजर गया। मैं अब के बात कर रहा हूं। अब जो टाइम पास करने वाला है वो टेलीविजन पे फिल्म देख रहा है, टेलीविजन पे ड्रामा देख रहा है, मोबाइल पे फिल्म देख रहा है, मोबाइल पे ड्रामा देख रहा है, मोबाइल पे गेमें खेल रहा है। जो चीज इस्लाम में पहले ही हराम है, तो रोजे के साथ वो काम कर रहा है और कह रहा है मैं जी टाइम पास, तो टाइम पास नहीं तो रोजा बर्बाद कर रहा है। ये रोजा पास नहीं हो रहा, ये रोजा बर्बाद हो रहा है। गंदी फिल्में, गंदे नाच गाने, फोश उरियानी, ये चीजें देखकर तुम्हारा रोजा पास होगा? तू तो अपने रोजे को तबाह बर्बाद कर रहा है। आओ मेरे आका पाक का इरशाद सुनो, फरमाया अगर तुम बुरी बात कहना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ते, अल्लाह को तुम्हारे भूखे और प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गंदी बात कहना और अमल करना नहीं छोड़ते, गंदी बातें हो रही हैं, फोश लतीफे हो रहे हैं और जनाब गंदी फिल्में, गंदे ड्रामे, गंदे गाने, गंदी बातें, तो क्या भाई रोजे का क्या हुआ? रोजे को तूने जाया कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। लिहाजा ये रमजान के भी एहतराम के खिलाफ है, रोजे के एहतराम के भी खिलाफ है और शरीयत मुस्तफा के एहतराम के भी खिलाफ है कि हम गंदे कामों के अंदर मोबाइल फोन या टेलीविजन पर अपने टाइम को बर्बाद करते हुए नजर आए। रमजान के हवाले से मैं आखिरी बात कर रहा हूं, फिर मैं आगे चलूंगा, लेकिन सुभान अल्लाह तो बोलते जाए ना जरा। अगली बात
बात ये है दोस्तों, आजकल एक और रवाज निकल आया है, ये जो रेडीमेड सकालर हैं, रेडीमेड इस्लामिक सकालर बनकर जो रमजान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ जाते हैं, पूरा साल ये नाचते हैं, ये कंजर खाना मचाते हैं, पूरा साल ये कौम को बेहूदगी, फुहाशी, उरियानी और इस्लाम मुखालिफ जहन साजी करते हैं। पूरा साल ये कंजर पूरा करते हैं टेलीविजन पे, और वो कंजरियां और कंजर रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर, दीन सिखाने के नाम पर, रमजान में सरों पे दुपट्टे और मेकअप के भरमार चेहरे पे, और जनाबे वाला वो दूसरे जो है वो सरों पे टोपियां लेकर सामने कंजर आ जाते हैं, हम जी आपको दीन सिखाएंगे। फिर ना कोई इल्म है, ना कोई आलिम है, ना कोई समझने वाली बात है, जो उनके मन में आता है भौंकते चले जाते हैं। कभी अल्लाह पाक की गुस्ताखियां, कभी अंबिया किराम की गुस्ताखियां, कभी सहाबा और अहले बैत की गुस्ताखियां, फिर दीन के अंदर जो खराबियां वो बयान करते हैं। हमारा बाबा भी बैठा है, मैं जी टीवी पे ना वो दीन सीख रहा हूं, सामने वो बैठी है ना जो चिट्टी गोरी मेकअप करके, उससे नजरें हटाता नहीं, मुंह में पानी आया हुआ है, लाला वर्दियां पहनते बाबा दीन सीखता बैठा है। दोस्तों जब बाबों का ये हाल है, जवानों का क्या हाल होगा? ये जवान रोजा दीन नहीं सीख रहे, ये ढरक के मारे हुए हैं, ये बेहयाई के मारे हुए हैं, ये बेहूदगी के मारे हुए हैं, इनके नफ्स शैतान के शिकंजे में है, इनकी सोचें परागंदा है, इनकी फितरत परागंदा है, इनके अंदर बदनीयती है। रोजा भी इनको गुनाह से नहीं बचा सका, शैतान कैद में चला गया, लेकिन इसका नफ्स खराब था, इसका मन हराम था। ये रोजे के नाम पर, ये टीवी के नाम पर, ये दीन के नाम पर अपनी ढरक पूरी कर रहा है, अपना रोजा बर्बाद कर रहा है, रूहानियत जाया कर रहा है। बता रमजान में तूने कितने कुरान खत्म किए हैं, बता तूने रमजान में कितना दुरूद पढ़ा है, बता तूने कितनी तहज्जुदें पढ़ी है, बता तूने पास बिठाकर तूने कितना दीन सिखाया है, कुरान सुना है, 6 कलमे पढ़े हैं, 6 कलमे पढ़े हैं, बता तूने दीन क्या सीखा है, क्या सिखाया है। दोस्तों वहां पर बस टेलीविजन पर फुहाशी उर्जानी, दीन के नाम पर फुहाशी उर्जानी, दीन के नाम पर बेहयाई, बेपर्दगी, बेखैरती, एक मोटरसाइकिल के लिए 7-7 लड़कियों को नचाया जाता है, एक मशहूरी, एक दूध की मशहूरी के लिए, दूध की मशहूरी के लिए 25 रुपए का डब्बा है दूध का, 25 औरतों को नंगा नचाया जाता है। अरे शैम्पू की पूरी 5 रुपए की है, पूरी औरत सर से पांव तक नंगी नहाते हुए दिखाया जाता है। कहां है तेरे रोजे, कहां है तेरे रोजे, वो नूर कहां है, वो कबूलियत कहां है? मुसलमानों खुदा के लिए दीन को समझो, दीन की रूह को समझो, दीन की असल को समझो। अगर चाहते हो रोजे में नूर पैदा हो, दुआएं कबूल हो जाए और माह रमजान हमसे राजी चला जाए, तो ऐसे रमजान गुजारो कि रब भी राजी हो जाए, रब का रसूल भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमा हक सुन्नत। क्या बात। मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, मैं तो पहले बात पर ही अपना टाइम खत्म कर बैठा, मैंने तो आगे भी चलना था। बहरहाल ये कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। हमने दीन के नाम पर भी हमने शैतान की गुलामी की है, दीन के नाम पे भी हमने यहूद और नसारा को राजी किया है, दीन के नाम पर भी हमने खुदा रसूल की नाफरमानी की है, दीन के नाम पर भी हमने अपनी बेहयाइयों और बेशर्मियों पे पर्दे डाले हैं और अपना काला चेहरा अपने दीन की आड़ में छुपाने की कोशिश की है। याद रखो, ये नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा, तू नहीं देख रहा, मैं नहीं देख रहा, सारी कायनात का पैदा करने वाला रब्बुल जलाल हर वक्त में देख रहा है और उसकी बारगाह में पेशी लगने वाली है। बता, मेरा खूबसूरत मेहमान रमजान आया था, तूने इसका कितना अदब किया, तूने इसका कितना एहतराम किया। लोगों, अगर चाहते हो ना रमजान की रूह मिल जाए तो पहली बात, सर्दी गर्मी सफर हजर माहौल जैसा भी हो, माह रमजान का एक रोजा भी कदा नहीं करना। अगर चाहते हो ना रमजान की रूह हासिल हो जाए तो फिर रमजान में बेहतर तो है 3 खत्म तो होने चाहिए,
रोजाना 3 पारे पढ़ोगे ना तो रमजान में 3 खत्म हो जाएंगे, वरना 2 खत्म तो कर लो, 1 कुरान पाक तो खत्म कर लो। अगर चाहते हो ना रमजान की रूह मिल जाए तो फिर इशा में टीवी छोड़ दिया करो, मस्जिद में जाके तरावी 5 जमात पढ़ा करो। फजर भी टीवी पे बैठे रहते हो, जब सहरी के लिए उठते हैं तो पहले टीवी विजन खुलता है। अरे तहज्जुद कौन पढ़ेगा, तरावी पूरी पढ़नी है, 5 जमात पढ़नी है। आप तरावी वाले कान खोल के सुन लें, एक होता है सुन्नत छोड़ देना, एक होता है सुन्नत को बदल देना। सुन्नत को छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह नहीं है, सुन्नत को बदल देना बहुत बड़ा गुनाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक वाले सुन्नत, मदारिसे दीनिया, आस्ताना आलिया हुजूर बारू करीम। एक है सुन्नत को बदल देना, एक है सुन्नत को छोड़ देना। दोस्तों मजबूरी है, आज हमने सुन्नत अदा नहीं की, गुनाहगार नहीं होंगे, कल फिर अदा नहीं की, मजबूरी है, अदा नहीं की, हम गुनाहगार नहीं होंगे, आदत बना लेंगे तो फिर गुनाहगार होंगे। सुन्नत को बदलना क्या है? बदलना यह है कि 8 को 10 कर ले, 20 को 10 कर ले, या 20 को 8 कर ले, ये सुन्नत को तब्दील करना है। तो सुन लो, सुन लो, सुन लो, 20 तरावी छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना 8 पढ़ना गुनाह है। क्यों? कि तू सुन्नत को बदल रहा है, शरीयत को बदल रहा है। लिहाजा अगर शरीयत को बदलेगा, 4 की जगह 6 फर्ज पड़ेगा तो वो 4 भी नहीं होंगे और गुनाहगार भी होगा, क्योंकि 4 से ज्यादा बड़े हैं फिर भी गुनाहगार होगा। तो जो 20 के 8 पढ़ता है वो 8 भी कबूल नहीं होती और सुन्नत बदलने का गुनाह भी उससे सर पे होता है। वो गुमराह है जो 8 तरावी पढ़ के निकल जाता है, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीके पे नहीं है। लिहाजा तरावी पढ़नी है, 20 पढ़नी है और मुकम्मल 5 जमात पूरा माह रमजान पढ़नी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सामने मोहतरम, ये शरीयत की आज जो धज्जियां हम शरीयत हमारे माशरे में उड़ाई जा रही हैं, यहाँ झूठ है, जहाँ शराबें हैं, यहाँ महफिलों पे नाच और गाने हैं, जहाँ नटवों के नाच हैं, यहाँ रंडियों के नाच हैं, यहाँ महफिल मौसीकी है, यहाँ पर 2 नंबरी है, यहाँ पे झूठ है, यहाँ माँ बाप की नाफरमानी है। मुआशरे में बहुत बड़ा गुनाह था, बहुत बड़ा गुनाह था जिस पर पूरी कौम सोशल बाइकाट कर लेती थी। एक बंदे ने 3 तलाकें दी और मौलवियों से पूछता रहा, उलमा ने उसको इजाजत नहीं दी। वो फिर कहा कि नहीं जनाब, मुझे कहीं से फतवा मिल गया। वो 3 तलाकें देने वाला फिर जो घर बसाता था, उलमा फतवे देते थे इसके खिलाफ सोशल बाइकाट है, मरना परना गमी खुशी सब कुछ खत्म। आज माशरे में वो घर भी नजर आते हैं जो 3 तलाकें देकर फिर खराबात करके बैठे हैं। उनको शरीयत की बात करो तो आंखें दिखाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, सीना तान के बात करते हैं। कहां गए वो मुसलमान जो कुरान के सामने गर्दनें झुका देते हैं, जो रसूल की हदीस के सामने अपने सर खम कर दिए करते हैं? याद रखो, सारी कायनात के रिश्ते नाते हुक्म काम बाद में है, तौर तरीके बाद में है, सबसे पहले खुदा का कलाम है, मुस्तफा का फरमान है। वक्त नहीं है कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, किस्सा मुख्तसर ये दोस्तों, ये जो मुआशरे का बिगाड़ है ये क्यों है? इसकी मेन वजह यह है कि आज हम दीनी तालीम से दूर हो चुके हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां मदरसे में नहीं आए। अगर मदारिस में पढ़ते तो उनको कुरान पढ़ के सिखाया जाता कि माँ बाप का मकाम क्या है, तो वो माँ बाप की बेअदबी न करते। कुरान हदीस सामने रखकर बच्चों को तरबियत दी जाती है दीनी मदारिस में कि हलाल और हराम में फर्क क्या है। तो ऐसा बच्चा जो दीन सीख के जाता है, हलाल और हराम में फर्क करता है, न कभी हलाल छोड़ता है न कभी हराम अपनाता है। दीनी मदारिस में पढ़ने वालों को कुरान हदीस सामने रखकर पढ़ाया जाता है कि बेटा शराब हराम है, जुआ हराम है, चोरी हराम है, सूद हराम है, मिलावट हराम है। जो बच्चा दीन पढ़ के जाता है वो माशरे में कभी हराम कामों में मुलव्वस नहीं होता।
जो बच्चा दीनी मदारिस के अंदर दाखिल है और तालीम और तरबियत हासिल कर रहा है, उसको कुरान और हदीस सामने रख कर बताया जाता है कि बेटा ये नमाज है, बहुत अहम है, ये रोजा है, बहुत अहम है, ये हज है, ये अहम है, ये ज़कात है, ये अहम है, ये ज़रूरियात दीन है, ये फराइज है, ये ईमान है, ये अकीदा है, ये इस्लाम है, ये अमल है। जो दीनी मदारिस से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, वो माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं करते, वो फहाशी नहीं फैलाते, वो दो नंबरियां नहीं करते, वो बुराइयां नहीं करते, वो शराबें नहीं पीते, वो रिश्वतें नहीं लेते। मैं इस पर दलाइल ज्यादा नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं एक दलील देना चाहता हूं, अगर दिल में लगे तो फिर सुभान अल्लाह बोलना, ना लगे तो बेशक अपनी सुभान अल्लाह संभाल के रखना। और बहुत गौर से सुनना दोस्तों, आज कचहरी में जाओ, आज थानों में जाओ, आज जेलों में जाओ, केस चेक करो, FIR चेक करो, किसी पे करप्शन का है, किसी पे जुए का है, किसी पे जो शराब का है, किसी पे चोरी का है, किसी पे डाके का है। आप कचहरियों में जाओ, ये क्यों आया पेशी के लिए, बताएंगे ये चोरी, ये शराब, ये जुआ, ये फुला। आप जेलों में जाओ, ये क्यों कैद में पड़ा है, ये क्यों कैद में पड़ा है। आपको लाखों FIR मिलेंगी, चोरी, डकैती, शराब, जुआ, जिना, बदकारियां, दूसरों की जमीनों पे कब्जे वगैरह वगैरह। मैं कहता हूं तुमने 1 लाख मुजरिम ढूंढ लिया जिन पे FIR है, तरह तरह के मुकदमे हैं। अब उन तमाम को दोबारा देख के आओ, कोई एक आलिम नजर आए तो मुझे भी बताना, कोई एक कुरान का कारी नजर आए तो मुझे भी बताना। ये तुम्हारे मुआशरे के पैदा किए गए नासूर हैं, ये स्कूलों कॉलेज के तरबियत याफ्ता है, या बाजारों के तरबियत याफ्ता है, या तुम्हारे घर के तरबियत याफ्ता है। जो रसूल खुदा का दीन सीख कर जाता है, वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं करता, बल्कि मुआशरे में संवारने का सबब बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत की है जो तदरीस के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, राशन है, लक्कड़ है, पता नहीं क्या क्या खर्च है। पहली गुजारिश आपसे यह है कि खुदा के लिए ये सारी तालीम मुफ्त दी जा रही है। अपने बच्चों और बच्चियों को दीन सिखाओ, दीन पढ़ाओ, दीनी मदारिस में दाखिल कराओ। आपका बच्चा और बच्ची अगर इल्म दीन सीख के जाएगा, दुनिया में भी आपकी इज्जत होगी, आपकी इज्जत करेगा, ताबे फरमानी करेगा, आपकी खिदमत करेगा, दुनिया में आपकी नेक नामी होगी। और दीन पढ़ा हुआ बच्चा या बच्ची आप दुनिया में छोड़ के गए, वो नेक औलाद है, वो सदका जारिया है, आपको कयामत तक उसका नूर आपकी कब्र को रोशन करता रहेगा। और अगर आपने बच्चों को दीन पढ़ाया तो कयामत के मैदान में सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। आलिम और कारी और हाफिज को मेरा रब फरमाएगा, अकेले नहीं जाना, अपने माँ बाप को भी साथ लेके जाना है, अपने खानदान के अफराद को भी साथ लेके जाना है। मेरे दोस्तों, खुदा के लिए अपने बच्चों पे रहम खाओ। खुद तो जाहिल रह गए, औलादों पे तो, नस्लों पे तो रहम खाओ। बच्चों में तो कलमा जिंदा रह जाए, बच्चों में तो ईमान जिंदा रह जाए, नस्लों में तो दीन जिंदा रह जाए। अपनी नस्लों पे रहम खाओ और इनको दीनी मदारिस से आशना जरूर कराओ। आखिरी गुजारिश, ये जितने इंतजाम मदारिस का चलता है, इनमें हुकूमत का किरदार ये है कि मसाइल ज्यादा पैदा करते हैं, वसाइल कम। दीनी मदारिस अपनी मदद आपके तहत, ये दुनिया में हजारों मदारिस हैं और लाखों उलमा हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है और बड़े आसान अंदाज के अंदर दीनी तालीम का ये निजाम चल रहा है। दीनी मदारिस उन लोगों के ताउन से चलते हैं जो साहिब सरवत होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से माली वुसअत अता फरमाई है। और माली वुसअत के साथ साथ अल्लाह ताला जिनको दिल भी वसी अता करता है, ये खुले माल वाले, खुले दिल वाले लोग इन मदारिस के साथ ताउन करते हैं और मदारिस का सिलसिला रवां और दवा होता है।
خدا کے نام پر دینے کے کتنے فضائل ہیں، آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، جگہ جگہ پہ اللہ پاک دین خدا راہ دین میں خرچ کرنے کی تلقین کر رہا ہے، اور پھر بڑھا چڑھا کر واپس دینے کے وعدے کر رہا ہے۔ اللہ کے نام پہ دینے والا یہ سوچ کے نہیں دیتا کہ میں خود دے رہا ہوں، وہ یہ سوچ کے دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو کم از کم اس دنیا میں کم از کم میں ایک کے بدلے 10 گنا اجر تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔ حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورے مدینے میں قحط تھا، آپ کے قافلہ ہے، اونٹ ہیں، اونٹوں پہ مال لدا ہے، سامان تجارت ہے، غلہ ہے، آ گئے مدینہ پاک میں تاجر اور کہا کہ 2 گنا نفع لے لو۔ ہم 2 گنا لیں گے پھر 3 گنا کمائیں گے۔ فرمایا میں نے 10 گنا لینا ہے۔ 3 گنا لے لو۔ فرمایا میں نے 10 گنا لینا ہے۔ انہوں نے کہا اے عثمان کون ہے جو تجھے 10 گنا نفع دے گا؟ فرمایا میں ابھی بتلاتا ہوں۔ جب سامان نے اپنی بولیاں بس کر دی، آپ نے اپنا پورا سامان مدینہ پاک میں اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا اور فرمایا پورے مدینہ پاک میں اعلان کر دو جس کو جتنا راشن ضرورت ہے حضرت عثمان غنی کے مال سے فی سبیل اللہ لے جائے۔ اے عثمان غنی آپ تو 10 گنا کی بات کر رہے تھے، فرمایا اللہ کا وعدہ ہے نا، تم 1 دو گے تو میں 1 کے بدلے تمہیں 10 گنا عطا فرماؤں گا۔ خدا کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوتا، دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اور ان مدارس کا ایک جلسے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سال بعد اپیل ہو جائے۔ تو پہلی اپیل یہ ہے کہ اپنے عشر 10واں 20واں آپ پہ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ آپ نے دینی ہے، اور خوب دیکھ بھال کے دیں کہ کہاں پر کتنے زیادہ بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ جہاں پر روزانہ 250 سے 300 بچہ 2 ٹائم کھانا کھاتا ہو، میرے خیال میں 2 دن یا 3 دن میں بوری ختم ہو جانی چاہیے۔ تو جہاں ایک ماہ میں 8-10 بوریاں گندم کی لگے صرف کھانے پر، تو اس ادارے کا حق بنتا ہے نا کہ عشر دیا جائے اور بڑھا چڑھا کے دیا جائے، اپنی توفیق سے زیادہ دیا جائے۔ عشر فرض ہے، آپ کا احسان نہیں ہوگا کسی پہ، یہ فرض ہے، آپ نے دینا ہے۔ 100 میں سے 10 بوریاں دینی ہے، 10واں ہے تو نہیں، تو 5 20واں ہے تو 5 بوریاں دینی ہے۔ نہیں دیں گے آپ گنہگار ہوں گے، 1 بوری بھی کھا جائیں گے، آپ اللہ رسول کا مال کھا رہے ہو، یتیم و فقراء کا مال کھا رہے ہو، آپ حرام کھا رہے ہو۔ عشر دو، پورا دو، وقت پر دو، اور دھوکہ نہیں کیا کرو۔ ایک مدرسے والا آیا، وہ لے گیا، دوسرے کو کہا وہ لے گیا، نہ ادھر دیتے ہیں نہ ادھر دیتے ہیں۔ اور بھائی جہاں پہ 5 پڑھ رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ وہی دے رہے ہو، اور جہاں پہ 500 پڑھ رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ اتنا حصہ دے رہے ہو۔ کچھ انصاف تو کرو نا کہ کون سا درس کا کتنی دین کی خدمت کر رہا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، یہ دیکھ کر آپ سے قبلہ کاری عبد المجید باروی صاحب مطمئن ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ علاقے والے تعاون کرتے ہیں، یہ آپ سے مطمئن ہیں، ان کو آپ پہ فخر ہے کہ میرے بھائی تعاون کرتے ہیں اور اچھا تعاون کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا تعاون جاری رکھنا ہے اور پہلے سے بہتر تعاون کرنا ہے انشاءاللہ۔ تعاون کریں گے، ہاتھ اٹھائے، تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی گزارش یہ ہے، قبلہ واجب الاحترام قاری صاحب نے میرے لیے کام بڑا سوکھا کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے میرے لیے کام بڑا سوکھا کیا ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو نقدی کی صورت میں ساتھی، یہ جو نقدی ہے آپ زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں، یہ نقدی آپ ویسے بھی دے دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر پہ چلے جاؤ، 2-4 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، جو 4 پڑھ کے پکڑا دیتے ہیں، 4-5 ہزار روپیہ ایویں خواہ مخواہ لگ جاتا ہے۔ کوئی آج کل اہمیت نہیں ہے، 2000 3000 4000 5000 کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ اور آپ نے اتنی تقریر سنی، اتنا ولولہ دکھایا، اتنے ہاتھ اٹھائے، اتنے جوش جذبے دکھائے، اب اصل بات کی طرف میں آؤں تو آپ کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں تو مزہ نہیں آئے گا نا۔ پھر میں کہوں گا یہ بھاری خالی نعرے ہی تھے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم چوری والے مجنوں نہیں ہیں، ہم خون والے مجنوں
मजनू हैं। कारी साहब को मैंने कहा कि मैं 10,000 वाले बंदे खड़ा करूंगा, पहले 10-20 बंदे और फिर बाद में हम नीचे। इन्होंने कहा नहीं जी, 3,000 वाले आप बंदे, सिर्फ उनको गुजारिश करें कि जो साथी 3-3 हजार नकद देना चाहें या 3-3 हजार रुपया लिखवाना चाहें, वो इज्तिमा के अंदर खड़े हो जाएंगे, अपना नाम लिखा देंगे या नकदी यहाँ पे स्टेज पे पेश कर देंगे। अगर 3,000 वाले भी आप में से 50-100 बंदे खड़े हो जाते हैं तो इदारे के साथ बड़ा तावन हो जाएगा। माशाअल्लाह, जो बारिश का पहला कतरा बनेगा ना, वो जरा जल्दी जल्दी खड़ा हो जाए और आकर हाजी साहब उठें, अपना नाम बताएं, लिखवाएं। हाजी लिखवा गए ना, ठीक हो गया। जिसके पास नहीं है वो बाद में पेश कर देगा, जिसके पास है कारी साहब फरमा रहे हैं कि वो आकर अपने नकदी पेश कर दे 3-3 हजार रुपया। जरा जल्दी करना है क्योंकि मेरे पास जो है वो आपने खिताब भी सुनना है और ये जलसा जारी और सारी है जलसा, इसलिए 3,000 रुपया यहाँ पर आकर पेश कर दे जिन साहब आपके पास है और वो देना चाहते हैं। अपना अपना हिस्सा यहाँ पे जमा करें। अल्लाह पाक आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हिम्मत करते जाएं और आगे आगे तशरीफ लाते जाएं। हिम्मत हिम्मत, माशाअल्लाह। दीन के रास्ते में देते हुए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जितनी जल्दी आप पेश करेंगे ना तो अल्लाह पाक आपको उतने खुलूस का अजर अता फरमाएगा और उतनी ज्यादा बरकत अता फरमाएगा। हिम्मत करें, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। 3-3 हजार रुपया यहाँ पर आप दीन की खिदमत के लिए पेश करें, ये आपका सदका जारी होगा और हमेशा हमेशा इसका अजर और सवाब आपके नाम अमाल में जारी और सारी रहेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह ताला मजीद बरकतें अता फरमाए। हिम्मत करते जाएं और अपने तरी से जो है जो आप राह खुदा में देना चाहे यहाँ पर पेश करें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, हिम्मत फरमाए। तीन वाले मुश्किल हो रहे, 2-2 हजार वाले आ जाएं। माशाअल्लाह, हिम्मत करें, हिम्मत करें। आपका माल वही है जो आप अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हैं। जो बचा के रख जाएंगे वो आपका नहीं है, ये हदीस पाक में है। फरमाया अपना माल वो है जो अल्लाह के रास्ते पे तुम खर्च करोगे, जो घर में रखोगे वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे वो रसा का माल है। हिम्मत करें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है ये 2,000 रुपया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हिम्मत करते जाएं, हिम्मत करते जाएं। अल्लाह पाक आपको बहुत बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप की जो तादाद है ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक आप जो हजरात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, आप 500 से ज्यादा हैं और 1,000 से कम हैं। आपकी इतनी तादाद है। अगर इस इतनी बड़ी तादाद में से 100 आदमी 1-1 हजार रुपया यहाँ पे पेश कर दे तो 1 लाख रुपया जमा हो जाएगा। और 1,000 रुपया इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि आप पता नहीं क्यों इतने सख्त हुए बैठे हैं और बड़ी मुश्किल से दोस्त आप यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। 1,000 रुपया कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं। तो जिनको ताकत है, जिनके पास 1,000 है, वो आकर अपने पेश करते जाएं। अब इसमें तो आप सुस्ती ना दिखाएं ना, जल्दी जल्दी आए और यहाँ पे 1,000 रुपया अपनी तरफ से पेश करते जाएं। माशाल्लाह, हिम्मत करें।
अब आप में कुछ जान डल गई है, आ रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। लेकिन जिस तरह आना चाहिए उस तरह आप नहीं आ रहे, कम से कम 100 बंदा तो आए ना, 1000 वाला 100 बंदा तो आना चाहिए। अल्लाह पाक आपको बरकत फरमाए, हिम्मत करें, पीछे से भी साथी आए, एक दूसरे को देखते हैं, अपनी जेब में हाथ डालें, अगर हैं तो आप पेश कर दें, हिम्मत करते हुए आगे तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, हिम्मत करते हुए आए, हिम्मत करते हुए आए। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। मैं 1000 मांग रहा हूँ, ये बाबा देखे 2000 लेके आ रहा है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, हिम्मत करते जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे, ये आपकी मोहब्बत है, आप इतने शौक के साथ आ रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, हिम्मत करके आते जाए। क़यामत में आप देखेंगे कि इसका अजर कितना है, तो आप सोचेंगे मैं सारा माल अल्लाह के नाम पे दे देता। राह खुदा में माल खर्च करना ये बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ा अजर है। ये आपका माल महफूज हो गया है कब्र हशर के लिए, आखिरत के लिए। 500 वाले साथी आ जाए, 500 वाले आ जाए, 1000 वाले जरा मट्ठे हो रहे हैं तो 500 वाले आ जाए। अगर कोई शक शुबा है तो पहले जेब में हाथ डाल के देख ले, 500 वाला है तो आ जाए, नहीं है तो बेशक बैठे रहे, जेब में चेक तो कर लेना, जरा हाथ डाल के चेक कर ले। अगर आप खुद नहीं तो साथ वाला चेक कर ले, दूसरे के जेब में हाथ डाल के 500 वाला है तो आ जाए, नहीं है तो बेशक बैठे रहे, हिम्मत करें। माशाअल्लाह, 500 भी कोई प्यारी चीज है, 500 के लिए आप परेशान कर रहे हैं हमें। माशाअल्लाह, हिम्मत करें। ये बड़ा औखा काम है जो कारी अब्दुल मजीद साहब ने मेरे जिम्मे लगाया, ये बड़ा औखा है, मांगना बड़ा औखा है, लेकिन दीन के लिए मांगना ये एजाज होता है, सवाब होता है। हमारा भी इसमें सवाब शामिल हो जाता है कि औखा सौखा। लेकिन आप होते बड़े जो है ना वो सख्त लोग हैं, आप उलमा को बार बार कहलवाने पे, मिन्नतें करने पे मजबूर करते हैं, तो सीधी अंगली नाल घ्यो जड़ा ना वो करना औखा थी वेंदा है। हिम्मत करें यार, 500 वाले आते जाए। माशाअल्लाह, आप देर कर रहे हैं और अगले खिताब का भी टाइम जो है हम जाया कर रहे हैं। हिम्मत करें, पीछे से आए, दाएं बाएं से आए। 500 रुपया आपके लिए देना कोई मुश्किल बात है मेरे भाइयों, 500। हिम्मत करें, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नौजवान बच्चों के जेब में भी 500 होते हैं। आप में तो अच्छे खासे घरों के जो है वो सरबराह आए बैठे हैं, खाते पीते लोग आए बैठे हैं। 500 रुपया कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आप आ रहे हैं, ज़ौक़ शौक़ से आते रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको दोनों जहां में इसका अजर कसीर अता फरमाए। हिम्मत करे, हिम्मत। माशाअल्लाह, अभी सोच रहे हैं आप, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हिम्मत भाई, हिम्मत, हिम्मत। ये साथी आ रहे हैं आपके पास झोली लेके, आप मेहरबानी फरमा के अपना हिस्सा थोड़ा बहुत जरूर डालना है। अगर कुछ भी नहीं है ना, खाली हाथ डालना, अंदर से कुछ ना उठाना, हाथ डाल के वापस ले आना, अंदर से कुछ नहीं लेना। आपने खाली हाथ ही डालना है तो डालना जरूर है। माशाल्लाह, अपनी जेबों में हाथ डालें, कुछ ना कुछ निकाल लें। 50 है, 100 है, 200 है, 500 है, 10 है, जो कुछ भी है ना कुछ हाथ में लेके बैठे। ये बच्चे आपके पास आ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे आका पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि अपने माल से प्यार किया जाता है या गैरों के? या रसूल अल्लाह, अपने माल से। फरमाया हम देखते हैं कि लोग गैरों के माल से प्यार करते हैं। या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई। फरमाया जो माल बंदा छोड़ जाता है वो अपना नहीं होता, वो वारसों का होता है। आपकी जमीनें, जायदादें, जगीरें, बैंक बैलेंस, सब कुछ ये आपका नहीं है, आपके पिछलों का है। आका अपना माल, फरमाया जो अल्लाह के नाम पे दे जाओगे वो तुम्हारा अपना माल है, वो मरने के बाद तुम्हारे काम आएगा मेरे भाइयों। इसलिए ये जब वैसे मौके आते हैं दीन के रास्ते पे खर्च करने के, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप जो औके सौके आए, कटाइयों का मौसम है और जमींदार इस वक्त
بالکل اپنے ناک تئی مشکل حالات میں ہوتا ہے اور ہر کوئی فصلوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فصلیں اٹھائیں گے، پھر قرضے بھی لائیں گے، عشر بھی دیں گے، مدارس کی خدمت بھی کریں گے، بچوں کے پرنیوے بھی کریں گے، زمیندار سارا کچھ اسی طرف۔ تو یہ کٹائی کا موسم ہے، اس لیے آپ مشکل سے آئے، پھر بھی آپ نے اچھا تعاون کیا۔ تو اس وقت آپ جھولیوں میں بھی تعاون کر رہے ہیں اور آئندہ عشر اور نقدی کی صورت میں قبلہ کاری صاحب کا آپ نے دست و بازو بننا ہے۔ اس ادارے کی کارکردگی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کوٹ سلطان کے اندر کام کر رہا ہے، قاری صاحب کی میت میں اور قاری صاحب کی زیر سرپرستی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور عوام اہل سنت کو بچوں کے داخلے کی صورت میں، اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دلانے کی صورت میں اور مالی معاونت کی صورت میں ان کے ساتھ تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات میں سے جس نے زیادہ حصہ لیا، تھوڑا لیا، جو کچھ لیا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح محفل لگی رہے گی، آپ بیٹھے رہیں گے۔ یہ ایک خطیب ممبر چھوڑتا ہے تو پھر آپ بھی مجمع چھوڑ دیتے ہیں اور ہلنا چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ تشریف فرما رہیں گے۔ ابھی یہ ساتھی چل رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔